अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Take it easy. If you know Sanskrit, take it easy. If you do not know, take it more easy. So the life has its own pace, friends. And let us not allow others to decide the pace and quality of your life. You will see the entire paradigm change. Trust me, after whatever I said, I do not know yesterday, I am feeling so much relaxed for myself. That is why I always told you, mantras have the effect first on your own self, because you are chanting for yourself. And then if at all others are receptive, it is effective for others. So a true driver is never worried about the traffic. So we saw the hint of Yoga Karmasu Kaushalam. I'm just going to have a snapshot of what we did as a summary report of our immediate Atit, so that we can possibly build our next inning on the same. So perfection is not an accident, it is abhyas yoga. And hence, we need to have abhyas of this. Take it easy. What for? मैंने छांदोग्य से शुरुआत की थी। मैं सत्यकाम जाबाल, मेरा वंश मुझे पता नहीं, मेरे पिता मुझे पता नहीं, इस संपूर्ण ज्ञान का मेरे वंश से क्या संबंध है। सत्यकाम जाबाल को ज्ञान मिल गया। Can we be simply truthful in our life? Do not condemn anything around. Yes, you might have your own research points and you might have your own places of joy and subjective whatever. But I always had this question, if Rajas and Tamas have no place in our life, what are they being there? Why they have been created at all? And then I got the answer. I met, जैसे इमर्सन ने हजारों प्रार्थनाएं सुनी थी और वो एक ही निष्कर्ष पाया कि लोग 2 और 2 5 करना चाहते हैं या 2 और 2 3 करना चाहते हैं। किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा बचपन में कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अच्छे हैं। मैं इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरा आंसर मेरे लिए तैयार था। बायस्ड में भी, डाइकोटोमस में भी, confounded में भी। But friends, questions are ours and answers are ours. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? कल मैंने कहा, we are masters, we are victims of fear. We should be masters of fear.
I am not saying fear should not be there. Please, please, friends, pay attention. And these are not words of a person or a personality. We are in the subconscious, the conscious or the overconscious are always the victims of our fears, and our fears are so subtle that we will not be able to. They can be for to earn, to conserve, to preserve, to nurture, to culture. And finally, I met a person, the names are not important, otherwise it would be a kind of incurring sin, who said, just don't bother about kama, krodha, lobha, moha, mada, matsar, sattva, rajas, tamas. मृदभक्षण लीला भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई क्योंकि भगवान कृष्ण दिखाना चाहते थे कि तमस से फाइट करने के लिए यू हैव टू बी तमस. क्या फूंक मार के उड़ा नहीं सकते थे? वैसे भी आए, यही वर्णन आता है, पहले फाइट करने दी, बाद में फूंक मार के उड़ा दिया, चाहे कोई भी असुर रहे वो. अब फूकी मारनी थी तो पहले ही मार देनी थी ना. बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों. Do not condemn, because when we condemn, it is difficult for us to take the things at ease. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे तू बुरा होगा? हमारे पंडितों ने सिखाया है हमें ये. हमारे पाप पुण्य के परिभाषा करने वालों ने हमें ये सिखाया है. हमारे डूज एंड डू नॉट्स के कमांडमेंट्स देने वालों ने हमें ये सिखाया है. दोस्तों, ये हमारे सेशंस टोटली डिफरेंट है. मैं अच्छे बुरे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिफरेंट है. और अलग भी इसलिए बोल रहा हूं ताकि, क्योंकि ये हमारी सेट परिभाषाओं में नहीं आता है. कॉफी मत पियो, चाय मत पियो वाली बात नहीं. अरे पी यार, पर पी दीवाने, खुशी से जी दीवाने. या तेरी आंखों के मैं खाने से जी. कौन होता है डिफाइन करने वाला तुम्हारा लाइफ? We have outsourced the happiness part in the world of outsourcing. I wonder those who are consultants, they say they are consultants and they outsource everything in our field also. They do not do a single technical work from, Arey, what is it? We are agents. Because of qualification, because of certain false rutba in the society, people will continue to label you as. But basically, घर की चाबी से घर का दरवाजा खोल के 2 महीने का कमीशन लेने और इनमें कोई फर्क नहीं. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे तू बुरा होगा? बढ़ते रहो जिंदगी में आगे, जरूर कुछ नहीं मिला दोस्तों तो तजुर्बा तो तुम्हारा होगा. Why are we not giving importance to experience in life? An experience without the experiencer, perception without the perceiver. Yes, the whole paradigm of खुशी से जियो, खुशी के लिए नहीं is where the perceiver is absent, experiencer is absent, and problem lies there. These wherever I took these such classes with different captions at times, people were so happy. There were no labels of Upanishads, Bhagavad Gita, big sermons, big pressure of culture. कोई मुझे सिद्ध करे कि जो शराब पीता है वो कल्चर का, he is not a man of culture. Please prove this. आज मैं बहुत मैथमेटिकल एक्सरसाइजेस देने वाला हूं. And don't convince. Just prove it for yourself. And friends, you will reach to an answer. Oh, really? First of all, if you do not have the experience of drinking, you cannot compare, you cannot have any analysis of one who drinks.
So matter ends there. I give the example of chai, coffee. I do not know what coffee is. Sorry for self-praise. At times it is required. The non-essential self. But these are the exercises where we are not, normally I say this not, अरे कुछ भी करो यार. हाँ? Sir, is it not contradiction? भगवत गीता के लेक्चर में हमें यार कहाँ बताया है डूज एंड डू नॉट्स, कहाँ बोला है कॉफी मत पियो भगवत गीता में, बताओ. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख. आपको जानना है आपके लिए क्या अच्छा है. वो छमछम करती आई, वो छमछम करती चली गई, बचपन की याद आ रही है. मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा, वो राखी बांध के चले गई. बचपन में इस टाइप के शायरी होती है, आपको याद होगा सबको, क्योंकि एवरीबॉडी पासेस थ्रू दैट एज. मैंने कल ही आपको कहा गाना गुनगुना ऐसा लग रहा है, गाना गुनगुनाओ बिंदास. झुमका गिरा रे बरेली के बाजा. कौन देख रहा है? अगोबाई. कोई अगोबाई नहीं. Live it for yourself, the life. Why can't it be? Why can't a 70-year-old lady be in love with somebody? Why can't a 70-year-old man be in love with somebody? Oh, sir, what is it you are discussing today? I am not discussing anything. I am telling you the facts of life remain under suppression, under repression. We are the same seed unless the seeds are roasted in a different garb. And that is why we keep on widening the gap between what we are, what we want, what we have, and what we actually do. And hence, friends, keep on defeating ourselves and moving ourselves from, take it easy. Come on, take it easy. Take it easy. If you find me at a pub, take it easy. Sorry that I am having an assumption about myself, about your prediction about myself. And with this assumption, I am saying, if you find me in a pub, still be relaxed. With the same kind of, oh sir, good. When is our next lecture of Take It Easy? You are not at all concerned with what I am doing and what you are finding me doing there at the present and in the present. क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे तू बुरा होगा? पंडितों की रटंत है ये, परिभाषाओं की रटंत है, परिकल्पनाओं की रटंत है ये. जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों. किसने बांध लगाया? मन एवं मनुष्याणाम कारणम. आज मैं सूत्रों का हवाला न देते हुए, सूत्रों के हवाले से हमें सारे आज तक कल तक में न्यूज मिलते रहती है, सूत्रों का हवाला न देते हुए आप समझ में आएंगे कि उपनिषदों के भी काफी यहाँ अभ्यासी और अभ्यासु मेरे सारे मित्र है. और मैंने कल बात की थी छांदोग्य से, सत्य जावा, सत्य काम जावाल, और ईशावास्य की, जो कि विदाउट telling you the sutras of that, the meanings and the various paradigms were very practical. ऐसा मुंह बना के मैंने कहा है आपको, नाम लेते वक्त फोटोग्राफ्स निकालो अपने खुद के और देखो, आपको दिखेगा टेंस फेसेस. जॉयफुल नहीं दिखेगा. आप, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको. और भेजो वो फोटोग्राफ्स, 10 फोटोग्राफ निकालो दिन में, अलग अलग टाइम पे नाम लो, 10 बार लेते होंगे तो. हर चीज का आनंद लो, कभी बोर नहीं होगा. और कोई चीज सब पता है, जजमेंटल नहीं बनना, ये नहीं, लेकिन ऑब्जर्व फ्रेंड्स, वी बिकम. और बढ़ते रहे जिंदगी में. जरूर कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो मेरा होगा, बस ये बात है ना. एक्सपीरियंस विदाउट द एक्सपीरियंसर. फ्रेंड्स, ओनली ए करेजियस पर्सन कैन लुक विद इन. हाँ, क्योंकि सारी मान्यताएं ढल जाएगी. बचपन से 40 साल 50 साल की हुई शिक्षा ढल जाएगी. आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय भगवान ओशो ने यही कोशिश उनकी रही. समझने में चूक हो गई. बोलने में कोई चूक नहीं थी उनकी, समझने में. और वो समझ के परे थे लोगों के. मैं बार बार कहता हूं, कलाकार देता नहीं युगधारा का साथ, बहती गंगा में नहीं धोता अपने हाथ. ये कलाकार है. संत कलाकार होते हैं. और संतों की कोई बात अगर गलत नहीं, ये व्यवहार से अलग लगे,
तो जीवन भर बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृति और संस्कार के ठप्पे जो है वो हमने लगाए हुए हैं। दोस्तों, मुझे बताओ, जो चीज हमारे खुशी के बीच में है, हाँ, वो खुशी श्रेयस है कि प्रेयस है, वो एक अभ्यासु साधक के लिए विषय होगा, खुद के लिए वो चर्चा नहीं है। पंचदशी में विषयानंदे आत्मानंदा बोला है, विषयानंदे परमानंदा बोला है, उसको समझने की बात है। लोग बोलेंगे सर विषयों से दूर जाने को बोला और ये कैसे है? समझो भाई, वो बहुत अलग चीज से बोला है। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n डिफरेंट विषय ययाति। हाँ, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, शायरी ठोकते रहते हैं, और मैं साफ किया तो तू नजर आया। अरे भाई, आईना साफ मतलब है क्या? ये जमी हुई धूल है, परते है समाज की, पंडितों की, परिभाषाओं की, परिकल्पनाओं की, और वही समस्या पैदा कर रही है। सत्यम वद, किती सत्य बोलणार रे? 50 रुपये देऊन गॅस सिलेंडर विकत घेतला. धर्मम चर, व्हॉट इज धर्म? ध्रुव धारायती. काय धारण केलाय? मला फक्त सतत आनंदी राहायचं आहे. ध्रुव धारायती ती धर्म. मग या धर्माच्या मध्ये जे येईल तो धर्म नाही. इसलिए कल मैं चौथा पॉइंट बोला था, 9 पॉइंट बोले थे, क्विक स्नैपशॉट ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं कि यू हैव टू हैव योर प्रयोजन जो है हमारा जीवन का, वो बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। और प्रयोजन यही है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ती लभते परा। दुसरं काही प्रयोजन असूच शकत नाही। कोण काय करताय संबंधच नाही आहे काही। व्हाईट शर्ट घातला तो प्युअर, काळा शर्ट घातला तो काय? अरे तुझ्या काळ्या शर्टमुळे त्याच्या पांढऱ्या शर्टची किंमत है। कितने दिन हम ये करते रहेंगे दोस्तों? सी व्हाट इज गुड फॉर यू, मूव अहेड अनकॉम्प्रोमाइजिंगली, टेक इट इजी। मला एकदा रेल्वेतून धक्के मारून बाहेर काढलं। मी सांगत होतो आमच्या बरोबरच्या सायंटिस्टना, ते म्हणे नाही बसून जाऊ थोड्याने, टीसी घेऊन पैसा। आता माझ्या हातात काही नव्हतं त्यावेळेस। नंतर मला कळलं की तुम्ही असे भागीदार होऊ शकत नाही, आणि तसंच झालं बरोबर। ते म्हणे सोमन तुम थे यार पहले बार ऐसा हुआ ना तो हमारा तो मान लेते। मैं बोला पता नाही, सत्यानास्ती परोधर्म। मी कल्चरचा भाव खाऊन घेतला त्यावेळेस, आणि आम्हाला बाहेर अक्षरशः धक्का मारून काढून टाकलं। कसलं टीसी आणि कसलं काय संस्कृतीत आपण वाढलोय हो। कशाला वाईट म्हणायचं कुठल्या गोष्टीला, आणि काय चाललं तर काय बदललं सांगा मला, क्या बदला है बताओ। मैं हमारी तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि संस्कार का बुरखा लेके हुए हम घूम रहे हैं। बताओ सीने पे हाथ रख के कि कभी टीसी को पैसे देने की इच्छा नहीं हुई है करके। बताओ कि कभी कोई सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड चीज। सत्य काम जाबाल से हम चूक जाते हैं, छांदोग्य उपनिषद से चूक जाते हैं। सांगायचं असेल तर सांग, मी आहे, मला माहित नाही माझे वडील कोण आहे। और इसीलिए कह रहा हूं, इट इज वेरी करेजियस, and only courageous person can look within and act accordingly. And if it is look within, it has to be without any definition of do's and don'ts and commandments, friends. All commandments are external. I am telling, outsource. I don't outsource your unhappiness also. I'm not saying only happiness. We are outsourcing our unhappiness also. मला सांगा, प्रत्येकाकडे सुंदर मोबाईल आहे, ते इकॉनॉमिक्सचं प्रिन्सिपल जाऊ द्या, लॉ ऑफ मार्जिनल युटिलिटी किती सुंदर आहे खरं। इकॉनॉमिक्स इज डायरेक्टली स्पिरिच्युअल, बट त्या उस परिप्रेक्ष्य में उसको नहीं देखते हम, इसलिए वो वहां से गुड्स कंज्यूमर्स, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है वो। अच्छा वो भी जाने दो, क्यों नहीं आनंद हो रहा है? निगेटिव एनर्जी जो है कंपैरिजन की, कंपैरिजन के दो एनर्जी हो सकती है। किसी की साधना देख के आप क्यों नहीं कंपेयर करते हो कि अरे वाह, मुझे भी नामस्मरण ज्यादा करना चाहिए, जो भी है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। अष्टावक्र तो कहते हैं तो कुछ मत करो, सीधा बोध में चले जाओ, चैतन्य में चले जाओ। इतने साल की तपस्या ऑलरेडी हुई है, कितने दिन ये फ्रेम में घूमते रहोगे, अलग विषय हो जाएगा। हमें आगे विवेक चूड़ामणि लेना है आपके आशीर्वाद से। So we have been operating, as I told you, from the inner rather insecurity rather than inner security. I repeat, when you say good evening, what do you mean?
I have seen people working here and there, doing even from toilet. There is nothing wrong with it. The best part is always in the toilet. Good morning. Now we have to see when we send good morning to somebody. I told you yesterday, we are already in the ecstasy that the morning is good, or we have decided to make it good. That's all it means subjectively. Others might not see your message even about good morning. कितना सुंदर है यार, क्यों तपस्वी जल्दी नहीं बन जाते, क्यों संत महात्मा नहीं बनते, इतनी फिलॉसफी के डोज व्हाट्सएप से आ रहे हैं, बाप रे बाप रे। सही में लोग तो कहने लगे बदहजमी हो रही है। बदहजमी इसलिए बोल रहे हैं कि परिणाम जीवन के जीने की शैली और ये विचारों का प्रेशर, सो कॉल्ड सुसंस्कारों का बोझ, पंडितों की व्याख्याएं और बचपन से शास्त्रों को ठीक तरह से न समझने की चेष्टा, इसके कारण हमारी तकलीफें बढ़ गई। कल मुझे 2 फोन आए, सर इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट इजी। ऐसे टेक इट इजी, क्या बात है? Even if you have this thought that it is difficult to take it easy, take this thought also, take it easy. अरे यही तो मजा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, बचपन का ट्रेनिंग। समस्या क्या है, वेयर इज द प्रॉब्लम बॉस, फंडा क्या है, सब मॉडर्न मैनेजमेंट तो सीधू नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मजा नहीं आता यार। मतलब जैसे जंगल का सही में इंटरेस्ट आने लगा ना, तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी जंगल हैंड्स इन सोसाइटी एंड हेड्स इन फॉरेस्ट। Take it easy. Now we are not able to maintain and become master of our fear. We become victims of our fear. And hence the 6th mantra was given, that you always should know that your capabilities are more than your problems. Your capabilities are more than your limitations, because problems are nothing but it is identity crisis, Vishad Yoga. So moment you de-identify yourself, problems are gone. As simple as this. Now Bhagavad Gita students, if at all we are, it becomes easier for us to understand and get these captions, workable captions. Friends, these are working modules. Take it easy, relax. डिफाइन मत करो चाय के प्रकार, वो वाघ बकरी रहने दो और कोई बकरी रहने दो। आज नया कोई चाय निकला, अभी हमारे घर में 15 मिनट डिस्कशन चल रहा था। बुजुर्ग मेरे अंकल डेथ बेड पे, इसको उड़ा देना बाद में, और वो पछता रहे, वो दादर से कैसे नया चाय आया कुछ मार्केट में, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो आजकल वो ला नहीं पा रहे क्योंकि ही इज स्टक टू द बेड। चाय पे चर्चा बहुत होती है, वैसे भी बहुत होती है, अच्छा है, आनंद में जियो, यहां कोई कंडेमनेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि मिली तो खिली और नहीं मिली तो, यहां प्रॉब्लम होती है। इसलिए करो आनंद, नहीं मिला आनंद, अद्वैतानंद। उसके बाद 7वां पॉइंट हमने देखा था, बहुत जबरदस्त था, कि जिसके लिए मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज डिटैचमेंट इन लाइफ। अगर सिर्फ दोनों चीज की, बहुत लोग बोलते हैं हमने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, डिटैचमेंट इज ओनली ऑपोजिट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। We have to go beyond. That is why again I repeat, let understanding be the law. It doesn't matter, friends, then you don't discuss about involvement or detachment. Why are you discussing about detachment? Sir, because it is special for us, we are conscious about it. Yes, and hence something will be attached to you, get attached to you, because the detachment was not natural. You are still defining it. गळून पडलं पाहिजे, गल जाना चाहिए, और पक्के गल जाना चाहिए। षड्विकारों की भी यही कहानी है, पक्के गल जाने चाहिए। कहां छोड़ने की बात कर रहे हैं, कहां कंट्रोल, असंशयम महाबाहो, कहां छोड़ने की बात हो रही है? छोड़ नहीं सकते आप, यू कैन नॉट।
ये बंद करो. टेक इट इझी. कित्येक लोक येतात, सर रागावर सगळं कंट्रोल झाला म्हणतात, रागावर पहिलेच चूक करतायत. कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा. सगळं कंट्रोल झालाय, फक्त रागावर नाही आहे, हे स्टेटमेंट चुकीचं आहे. रागी के लिए स्थान है, बैरागी के लिए स्थान है, सन्यासी के लिए स्थान है, गृहस्थ के लिए स्थान है. वो एक ही चीज है. लेट अंडरस्टैंडिंग बी द लॉ. टेक इट इजी. इसलिए मैंने कहा वो छमछम करते चली आई, वो छमछम करते चली गई, मैं सिंदूर लेके खड़ा रहा, वो राखी बांध के चली गई. ये बचपन में बड़े मजाकों में, आशिकी माशुकी में लोगों ने कहा होगा. इसका मतलब है माया. और माया महाठगनी. राखी बांध के चली गई का मतलब. माया से शादी करो ना तो भी अच्छा है, क्योंकि माया के साथ ब्रह्म है, तो अपने आप ब्रह्म के साथ शादी हो जाएगी. क्या बात है. लेकिन मिराज से कोई बात हो सकती है? कोई चिपक सकता है मिराज को? नहीं ना. यही तो प्रॉब्लम है. इसलिए माया महाठगनी. The secret is not in Shastras, friends. Underline, please. Secret is not in Shastras. Secret is understanding your Shastras in their right import for your own self, by your own self. Ah. Yes. Nothing else. इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद अकल का बोझ उसे संभल नहीं जाता. क्या बात है. क्या गालिब, क्या शायरी कही है लोगों ने. इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद, ये अकल का बोझ उसे समझ में नहीं आता. दोस्तों, अकल को दूर रखना है. Yesterday I told intellectuals are intelligently miserable. Yes, and intelligent are not. Intellectuals are intelligently miserable. Intelligently because they can neither be convinced nor can they be confused more, and they just remain in their own world, which creates problems for them. ये नाजुक मिजाज है. टेक इट इजी. इसमें अकल का बोझ नहीं आप उसको ढो सकते हो. लॉजिक. आज मुझे दोपहर में यमन सुनने की, और मैं सुन रहा था, अचानक लॉजिक का कीड़ा खटखटाने लगा दरवाजा. भाई साहब, ये रात का समय यही है क्या? आसावरी चुन लूं? और फिर हंसी आ रही. देखो टेक इट इजी का कैसे फायदा होता है. सोमन साहब, टेक इट इजी. ये जो फालतू अकल का बोझ है ना, कौन सा क्या, अच्छा लगा तो सुन, नहीं लगा तो छोड़ दे. अरे वही बात है. साल खा, कोचरा वाटला चाव सा, कडू लागला तर फेकून दे. बिया खायचा नाही हे कोणीच आईने सांगितलं नाही तरी लहान मुलगा चावून थुकून दिल. तर करून बघा. पहिल्यांदा गेल. सगळ्यांनी लहानपणी हा प्रश्न विचारलाय, पोटात झाड उगेल का म्हणून. हे काही कॉमन गोष्टी प्रत्येक लहान मुलांनी केल्या. आठवा तुम्ही पण. आणि मग ते सांगतात आता पोटात झाड उगवेल. काही दिवसांनी कळून जातं त्याला. कुठली शास्त्र होती पहिल्यांदा हे. पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी. माणसं पैदा नव्हती होत. Many times I feel, do we really need this science? Now let's not enter into that. Science is definitely C. The question is, what is important for you? Again, no comparison. What is important for you? It is your science. Dhru dharayati iti dharma. And our dharma should now be defined as take it easy. Relax. अर्ध पायचा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध. तिथेच थांबतो आपण. अरे बापरे, बंधनात आहे, मी फार छोटा आहे, आय एम ए स्मॉल मॅन. फार मोठ्या मोठ्या लोकांना मी ऐकलंय म्हणताना आय एम ए स्मॉल मॅन. त्यांना शांतपणे उत्तर द्यायचं, येस, फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग ट्रूथ. फर्स्ट टाइम you are speaking truth. I am a small man. What are you trying to indicate? You are a small man. Friends, our inflated ego is getting the satisfaction that I am a big man and I am posing that I am a small man. Trust me, if you are small, you will never say you are small. If you are really big, you will never say you are big. When we create the contradictions, we enjoy the contradictions and hence fail to understand the contradictions in life. We seriously fail to understand contradictions in life. And as long as we do not understand them, I repeat, हमारे पंडितों के, शास्त्रों के गलत अध्ययन से, परिभाषाओं से, और इन परिभाषाओं से आदमी मुक्त होना चाहिए.
इन परिकल्पनाओं से आदमी दूर होना चाहिए। फूकने लगा है फूक, पीने लगा है पी। 70वें साल में गाना लग रहा है, तू छिपी है कहां, बोल गाना, कौन रोक रहा है तेरे को? सर, I am 70-year-old. Thank you for 50 years sadhana of not being body, and we are convincingly expressing that I am 70-year-old. Thank you so much. कुठे जातं? अनेक वृद्धांना मी बायोलॉजिकली प्रश्न विचारलाय, तुमच्या तोंडी लहानपणी तर तुम्ही गाणं म्हटलं असेल, सगळे धावले आहेत झाडामागे किंवा झाडामागे धावलेल्यांचा आनंद घेतलाय. प्रत्येक जण धावू शकत नाही. पहा, एक एक कभी कभी मैं घर में गया हूं, निवारा में जाता हूं, कभी वृद्धों की ऐसे सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मजेदार हम लोग आपस में बात करते हैं, सेवा की बात नहीं है। और मैं अतीत में जानबूझ के, क्योंकि देखो बायोलॉजिकली जब हम ग्रो होते हैं हमारे पास सिर्फ पास्ट होता है। मैं शरीयत लगाता हूं, अपन कोई भी मिले ज्यादा से ज्यादा सो कॉल्ड सत्व की बात करेंगे, अरे सर क्या दिन थे वो, अगेन सॉरी फॉर एजम्पशन, गुड एजम्पशन, या क्या बुरे दिन थे वो, क्या बकबक होती थी और हम भी सुनते थे। जीवन का गणित अपनी धाराओं में बहता है। कभी पूछो उनके अतीत को जाके, ओल्ड एज होम, अरे ऐसे ऐसे गाने बेगम से लगाकर परवीन सुल्ताना तक और रशीद खान से लेकर सैगल तक, क्योंकि आपने उनके अंदर के नवयुवक को जागृत किया, बच्चे को जागृत किया। वो मर गया था, उसको मारा गया था। हमारा नया संस्करण जीवन का लिखना है, एंड दिस इज व्हाट इज टेक इट इजी। जीवन बदल जाता है दोस्तों। लोग बेवकूफ कहेंगे, कहने दो, उसमें भी वजह है। हम बावफा थे, वफादार थे, इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तलाश तुम्हें किसी बेवफा की थी। यही कहानी है दुनिया की। बोलो जो लगता है बोलो, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा, बोलो ना यार, यहां तक आया, क्यों गले से नीचे उतारते हो उसको, क्यों रोकते हो? क्या पाप किया है आपने ये गाना बोलने में? हमारे पाप और पुण्य की जो परिभाषाएं है उसको बदलना होगा, अन्यथा इट विल बी डिफिकल्ट टू टेक इट इजी। टेक इट फ्रॉम मी individually as your friend. We are trying to understand. No preacher, no teacher, no preceptor either. We are only trying to collectively understand, inspiring each other and inspiring each other's presence. Nothing else, no one else. इसलिए बढ़ते रहो जिंदगी में। जरूर कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा तो होगा, but we want to experience without the experiencer. We want to perceive without the perceiver, and hence we say relationless relationship. क्या रिश्ता है अपना बताओ? कोई किसी को जानता नहीं, ना कोई पर्सनल मैसेज भेजता है, ना कुछ, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, ऐसा ही कोई संकल्प हुआ, चले जा रहा था जानी बे टाइप, और कारवा बनता गया और जाएगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चाहिए, ये कारवा भी टूटेगा एक दिन। कौन किसका घर बांध रहा है? डोंट मेक ए ड्वेलिंग, यू आर जस्ट पासिंग, डोंट मेक ए ड्वेलिंग ऑन इट। सम्राट अकबर का रस निकल गया था संसार से विजय यात्रा के बाद में। हमने एक रिटायर्ड प्रोफेसर 70-80 साल के 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई थी, फोन पे, टेलीफोन पे। बोले अतुल, याद है 20 साल पहले कुछ सत्संग किया था, सत्संग में आते थे वो, हमें बड़ी ठसन थी। बोले अब ऐसा है, प्रमोशन है, डिमोशन है। आपने उस वक्त एक बार एग्जाम्पल दिया था, बोले मेरे पास 40 पीएचडी स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो सारे पीएचडी स्टूडेंट्स का जो आधार था वो प्रमोशन था। देखो दोस्तों, 80 साल में रियलाइज हो रहा है अभी, लेकिन सत्य के करीब जाने की चेष्टा हो रही, कबूल कर रहे हैं। जैसे ही समझा, इसके बाद ऐसे कई लोगों की स्थिति आती है कि उसके बाद उनके जो उन्होंने सीढ़ी जो अपनाई है उसके आगे कोई प्रमोशन नहीं है उनको, तो उनका इंटरेस्ट चला जाता है। इसलिए ये अद्भुत रस जो है ना जीवन का, ये आज का पहला पॉइंट है। हा रस अद्भुत पाहिजे। मला माहिती आहे मला प्रमोशन मिळणार नाही आहे, मला माहिती आहे वय झालंय, मला माहिती आहे युनिव्हर्सिटी परमिशन देईल की नाही, पण एक सुंदर विषय काहीतरी वाटतोय ऑब्जेक्टिव्हली, आणि एक तेवढाच सत्यकाम जाबाल कोई शिष्य सामने खड़ा है, आ जाए भाई,
एक गुरु है, एक शिष्य है, मिलन हो रहा है, पता नहीं आगे क्या, दैट इज रिसर्च। नोन कैसे हो सकता है रिसर्च? आजकल नोन रिसर्च है, रिजल्ट्स आर ऑलरेडी नोन, यू हैव टू ओनली सपोर्ट इट बाय डेटा। वाह भाई, रिसर्च इज रीडिफाइंड। इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद अकल का बोझ लेके मत चलो। मेंटेन दिस अद्भुत रसा इन योर लाइफ। और अद्भुतम, हाउ इट इज ब्यूटिफुली लिंक्ड नाउ टू द 11th chapter which we are luckily perceiving or trying to understand and be in the process, the consciousness of the 11th chapter. Yes, अद्भुत रसा, आहा। बार बार मैंने कहा कौवे को देख को बोलो आहा, सर नहीं, वो नहीं होता है रिएक्शन, दैट इज व्हाट वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। मोराचा पिसारा आहा म्हणायला कोणाला शिकवावं लागत नाही, पण कावळ्याकडे आहा जेव्हा सहज निघेल तब समदृष्टि हो गई, सम्यक दृष्टि हो गई, शुभ दृष्टि हो गई। है ना मजा? ये अद्भुत रस जीवन का जब चले जाएगा, वंडरमेंट, तब तक कोई उत्साह नहीं आएगा, और कोई उत्साह नहीं आएगा तो कोई उत्सव नहीं होगा। ये नवा पॉइंट था हमारा। और अगर उत्सव होना है, लाइफ इज अ फेस्टिविटी, सकाळी सकाळी लोक मेसेज पाठवतात आणि दुपारी मेसेज येतात, सर फीलिंग डिप्रेस्ड। हाय, टेक इट इजी यार, व्हाई दिस कॉन्ट्राडिक्शंस इज लाइफ? अदरवाइज बोल्डली से दैट सर मॉर्निंग से डिप्रेशन के थॉट आ रहे हैं, अद्वैतम दर्शनम ज्ञानम। सच्चा आदमी है कम से कम, सुबह सुबह खुद को और दुनिया को पूरा ज्ञान सिखा रहे हैं, और 11 बजे डिप्रेस्ड, क्योंकि कौवा और बगुले में अंतर हो रहा है, हंस और कौवे में अंतर हो रहा है। When we are shifting to the second, after 40 minutes almost now, it's a point, it's a time for contemplation, friends. Even that 1 minute, yes, take a pause and take it easy. We rejoin. हम गाना सुनने गए थे, और उनके गुरु रजत खान साहब, अगर मेरा कहीं नाम में गलती होगी तो कोई बात नहीं, वो साहब पे 2 साल रहे। क्या बात है, जहां ये जितने यहाँ गायक है या संगीत के जानकार है, साहब पे 2 साल रहे, और बड़े गर्व से कहते थे, रशीद खान साहब कहते थे, मतलब कहते हैं, ये साधना है सा की, वादी संवादी जो भी आपको बोलना है बोलते रहो। जीवन का आनंद आपका आपका है, टेक इट इजी। मुझे याद आया बचपन में मैं जो भूप राग, और हमारे 1-2 संगीतकार, संगीत मित्र थे, जानकारी रखते थे, घर से आया था, हमारे घर से तो कुछ आया नहीं था, आणि ते लहानपणी बरं वाटायचं, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा। आणि कित्येक दिवस 3-4 वर्ष भूपच। Now the point which I want to draw, is, why are we conscious? Why are we? Is it not our joy, friends? The logic says, why not Asavari? Why not Vibhas? You see, in the simplicity of life, what are we? Can there be a scholarship in joy? Can there be a scholarship in joy? If it is bhoop for somebody for 10 years, let it be bhoop. No, it is too simple राग। ये राग सिंपल और टफ क्या होता है यार? देखो दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूं, यहाँ काफी संगीतज्ञ है, ये जानकारी मुझे भी पता है कि विश्लेषणात्मक दृष्टि से आप उसको कैसे टफ और क्या बोलोगे, आरोह और अवरोह की बात करोगे, और कुछ बात करोगे, कोमल मध्यम तीव्र की बात करोगे, बात वो नहीं है। कहाँ कोमल कहाँ मध्यम बताओ, कोई तबियत खराब हो गई तो सब मध्यम सब एक हो जाता है ना, अवघा रंग एक चीज आला। इट इज माय जॉय इज माय प्रायोरिटी, my unconditional joy is my priority, take it easy is my priority in life,
Why are we entering into the complexities defined by others and outsourcing our happiness or unhappiness? Either way. Point to ponder. We do not feel the richness. I'm coming back to marginal utility concept. We do not feel the same richness. Please tell me, instead of abhipraya, afterwards, do you have the same joy with your wonderful Android version, as a result of which all of us are apparently to be together? No. Our richness has been looted. We do not feel, and this is called natural deleting mechanism. निगेटिव कंपैरिजन होता है. एक को मैंने ऐसे ही पूछा, उसने कहा नेबर के पास भी है. जब नेबर के पास नहीं थे, मुझे याद है आज भी 24 रुपए आउटगोइंग कॉल, इंडियन स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, और मेरे पास वो मोबाइल था, कारणवश मुझे जरूरत थी. और जो मजा और जो प्राइड मोमेंट, जो आनंद मुझे उस वक्त आया, उसके बाद कभी नहीं आया, क्योंकि वहां 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों में एक फोन था, वो एंटेना वाला. We have allowed this deleting mechanism to overpower us. आज का सूत्र नंबर 3. कल 9 सूत्र देखे, आज ये 9 सूत्र है, और ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, ऐसे ही बात कर रहा हूं ब्रह्मांड का. इसलिए जिक्र माया का हो रहा है और आधार ब्रह्मा का है. यही तो मजा है. अष्टाभुजा एंड भगवान कृष्ण. So please be conscious of the negative deleting mechanism, which in a mechanized way is working on you and looting us, looting all of us eternally, ubiquitously. And we miss on richness of life. हे फील झालं पाहिजे हो. लोक सांगतात, बडबड होते आहे सगळ्यांची, इन्क्लुडिंग द स्पीकर. राजा सजी महाली, सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली. हो का? या झोप दे तुझ्या घराच्या चाब्या, या झोपडीत माझ्या. आणि लगेच नवऱ्याची का बायकोची भांडण. त्यावेळेस इन्व्हेस्ट केलं असतं तर बरं झालं असतं. किती माणूस खोटं स्वतःला फसवतोय. आपल्याला पाहायचंय, नसेल तर आनंदी आहात आपण. टेक इट इझी. When you say राजा सजी महाली, सौख्य कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली, या झोपडीत माझ्या. वेळ आली झोपडीत राहायची तर तेवढाच आनंदी राहून दाखव. इसका ये मतलब है 2 साल सा में रहने का. 2 साल रहना पड़ेगा. कोण मेले कुणासाठी रक्त ओकून, जानना चाहिए जरूर कशासाठी उतरावे तंबू ठोकून. पण तंबू ठोकला जातात नवनवीन, in the form of investment, dead investment in cement and concrete. Deleting mechanism in a mechanized way is continuously working on us, friends, and looting us away from our natural joy and staying in the state of being. Take it easy. Take it easy, trust me. कनेक्टिविटी नहीं है. आज लोग इतने परेशान होते हैं, कनेक्ट गीता के लिए नहीं होते हैं, बोलते चलो भाई कनेक्टिविटी नहीं है, गुड. कई दूसरे जगह नया म्यूचुअल फंड, नया कोई इन्वेस्टमेंट है, कनेक्टिविटी नहीं है, परेशान, मैसेजेस करेंगे, उस आदमी को भी शांति से बैठने दे. देयर इज नो कनेक्टिविटी मीन्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड देयर. टेक इट इझी. काय 4 वर्षापूर्वी माहिती होतं कनेक्टिविटी आणि झूम, विदाउट झूम. अद्भुत रस जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा जीवन में. डोंट अलाउ वंडरमेंट टू गो अवे. हे संपल्यानंतर सगळं वंडरमेंट मध्ये टाकून द्या. क्या मजा आता है देखो जीवन का. पूरा लाइट्स गए, वंडरफुल. आए, वंडरफुल. मच्छर ने काटा, वंडरफुल. हाँ, हमने ऐसी सुविधाएं बना ली है, प्रेयस के इतने मार्ग खुले कर दिए हैं कि जब कभी श्रेयस की परीक्षा होगी, that time it will be difficult for taking the things easy. दो चीजें नहीं रह सकती. अभ्यास योग कौंतेन, अभ्यास करना पड़ेगा. और ये अभ्यास, ये ट्रेनिंग, वही मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है
जितने डूज और डू नॉट हमें उसका निचोड़ बताया है। हमारा अनुभव जो जीवन में हमारे साथ रहने वाला है वो बहुमूल्य है। बाकी सारे शब्द दो कौड़ी के। एक ने पूछा आप भगवत गीता क्या है सर? मैंने कहा आनंद लहरी, प्रेम लहरी और सौंदर्य लहरी। हाँ सर, हाउ डू यू? भक्ति योग प्रेम लहरी, ज्ञान योग आनंद लहरी और कर्म योग सौंदर्य लहरी। खत्म। भगवत की भाषा में बोलो ना, क्योंकि पूछने वाले का सवाल कितना गीला है और कितना गहरा है, उस हिसाब से जवाब आना चाहिए। लोग उबले भक्ति योग कर्मयोग ज्ञान योग म्हणून। See, when everything is kaleidoscopically changing, take it easy. Rename them. Rename the things. सौंदर्य लहरी, प्रेम लहरी, आनंद लहरी। ज्ञान आनंद है, क्योंकि where action ends, that is knowledge, and where knowledge ends, that is love. So it is basically सौंदर्य लहरी पहले, उसके बाद आनंद लहरी और उसके बाद प्रेम लहरी। खत्म। उसको लगेगा बोलेंगे बहुत सारी बातें करेंगे, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। नको नको नको, मयि सर्वाणि भूतानि सन्न्यस्यात्। नको नको। सौंदर्य लहरी, आनंद लहरी, प्रेम लहरी। खत्म हो गई बात। उसको जवाब नहीं, सवाल नहीं आएगा आगे क्या पूछ रहे हैं हम। फ्रेंड्स, अद्भुत रस को कभी जाने मत दो। अद्भुतम अहो आश्चर्यम। परसों मैंने इसीलिए वो पंक्तियां लिखी थी, हम काहे के लिए मिले जब मिलना नहीं है। हो सकता है हम एक दूसरे के चेहरे सालों साल नहीं देखेंगे, जन्म जन्म नहीं देखेंगे, पता नहीं। अब तो डिजिटल सेट हो रहा है सब, एज इट इज। माइक्रोसॉफ्ट मीट, जूम। जीवन का सौंदर्य सिर्फ ये समझने में है और टोटल एप्लीकेशन में। टेक इट इजी। काहीच डिफाइन करू नका। माहिती सगळं है, सब पता है। एक्शन में क्यों लोग पूछ रहे हैं? मैं दिखाऊंगा कभी रूबरू हो गए तो व्हाट्सएप पे क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं पर्सनल। क्यों हो रहा है ये? इसकी जरूरत लग रही है, महसूस हो रही है। बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू टेक द थिंग्स इजी। पता है, खुशकिस्मत है, सब सुविधाएं लगा दी है, तुरंत गुड नाईट। मच्छरदाणी पहिले होती, वाईट काहीच नाही त्याच्यात, पण मच्छरदाणीला एक नेहमी भोग पडायचा, जुनी व्हायची। गरीब परिस्थितीतल्या लोकांचा कॉमन एक्झाम्पल, त्याच्यातून 2 डास शिरायचे आणि ते रात्रभर त्रास द्यायचे। तुम्हाला हसायला येईल या उदाहरणाची, ही सत्य उदाहरणं आहेत सगळी। आणि फटके मारत आपण डाव्या खांद्याला उजव्या खांद्याला गांधी आलेल्या असायच्या। जीवनाचे खूप मेसेजेस त्यातून, कारण तुम्ही कितीही काही करा, पेस्टिसाइड आले, दुनियाभरचे आले, फवारे मारले सोसायट्यांमध्ये, ज्यावेळेस जिस बार मच्छरों को पैदा होना है वो पैदा होते ही है। दुनिया जैसे है वैसे ही रहेगी। खरंच आईनी लहानपणी सांगितलंय, केवढे संस्कार झाले। ये कुत्ते की दुम है। काहीच नाही कळलं त्यावेळेस, पण अब समझ रहा है ये दुनिया सिर्फ कुत्ते की दुम है। अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? भजस्व डिफाइन हो रहा है। वाई वी आर नॉट एबल टू टेक इट इजी? भजस्व डिफाइन हो रहा है। 13 माळ, 13 कोटी जप। भगवद्गीतेत नाही सापडलं 13 कोटी जप कुठे लिहिलाय म्हणून। क्या बात है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टँड। एक शास्त्र, एक पुस्तक, ज्याला आपण बायबल म्हणूया प्रत्येक धर्माचं, ध्रुधारयती धर्म, नॉट हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन, आणि शास्त्र प्रमाण कुठे दिसला नाहीये 13 कोटीचा जप। याचा अर्थ 13 कोटीचा जप करायचा नाही किंवा आहे त्याचं महत्व वगैरे, तो विषय नाहीये। कुठे लिहिलाय? गायत्री जपात मी महत्वपूर्ण असं म्हटलंय, पण सर्व सर्व असं नाही म्हटलं। मग काही साधं म्हण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, काहीच नको म्हणू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। क्यों 100 बार मैं ये बोलता हूं? किसी पर्पस के लिए तुलसी रामायण खड़ा मत करो।
अपने आनंद के लिए हमने तुलसी रामायण लिखा और अपने आनंद में हम सरोवर है, बस यही जीवन का सूत्र है. टेक इट इजी. And don't talk for happiness. Don't talk for anything. Talking itself is happiness. Listening itself is happiness. Doing itself is. How do we claim, friends? Nirjala Ekadashi. What are you trying to say? अच्छा है, you are conserving water. Why we define? We should not. It is Nirjala for you. Others might take 5 gallons of water the same day. I repeat the message for all of us. A very poignant and pregnant message. We get married for happiness. Alas, we should be marrying out of happiness. That's it, friends. The experience with this world, with the objects and the things and beings surrounding us, we should be marrying with them out of happiness and not marry with them for happiness. The moment we do that, we keep reward outside our work. कर्मण्यवादी का तुम्हाला बदलायला हवा आहे. कर्मफलाची आशा करू नका. लोक उदास होत आहेत. भगवान कृष्णाचा मेसेज तुम्हाला ताकत है, देता है विवेक कि दूसरे ढंग से उसको डिफाइन करो. अभी वो चला गया. कौन कर्म करेगा यार? लोग पूछते हैं रुडिमेंटरी इंटेलेक्ट. वैसा अर्थ ही नहीं है ना. वी आर नॉट रेडी टू प्लेस रिवॉर्ड ऑफ द वर्क आउटसाइड द वर्क. खत्म हो गई बात. तेरे काम में तेरी सेवा है, तेरे काम में तेरा सौंदर्य है, तेरे काम में तेरा आनंद है, तेरे काम में तेरा प्रेम है. खत्म हो गई बात. ऑटोमॅटिक झालं. कर्मण्यवादी का रस्ते महाफले सुखदायक. पण ते सांगितलं तर जड जातं ना. And what do you mean? No, we don't mean such. Relax, take it easy. लोग शास्त्रों पे भी चिढ़ते हैं. क्यों चिढ़ते हैं पता है? अच्छे लोग हैं, बड़े प्रेम भरे हैं. नकारो मत, ढकेलो मत उनको. शास्त्र से क्या लेना है उस वक्त उस शख्स के लिए ये समझने में जब कमी रह जाती है. सगैसिटी इन लाइफ बोलते हैं इसको. वी आर नॉट हैविंग सगैशियस विजडम. दैट्स व्हाई विजडम इज वेरी रेयर. कृष्णमूर्ति यही बोलते थे बार बार. विजडम डजंट मैटर यार. व्हाट यू डू, वेदर यू बिलीव गॉड और नॉट, वेदर आई बिलीव इन गॉड और नॉट, वेदर आई एम सात्विक रजस तमस, वेदर आई फॉलो गीता और नॉट. अरे नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन योर ओन जॉय. टेक इट इजी, रिलैक्स. नाही येत संस्कृत, एन्जॉय, डान्स. वेक मी अप बिफोर यू गो. काय वाईट आहे? शेरी शेरी काय वाईट आहे? ब्रदर लुई काय वाईट आहे? नो लॉरा ब्रेनिगन यू शुड नॉट. संत तुकडोजी महाराज यू शुड. हु आर ऑल डिफाइनिंग दिस? मला सांगा, संत तुकडोजी महाराजांचा अभंग आणि लॉरा ब्रेनिगनचा सेल्फ कंट्रोल, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ सर ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये से ज्यादा ही होगा क्योंकि टेक इट इजी. कुछ भी डिफरेंस नहीं है. केयरलेस विस्पर कितना सुंदर. बी केयरलेस, केयरफुली. टेक इट इजी. Carefully careless is same as what we said. Don't take the things, don't take life seriously, but don't take it casually. The whole problem is, I repeat, we see life linearly. Life is circular or in totality. Don't see linear life. सगळा प्रॉब्लेम खत्म होतो. माझा आशीर्वाद, मी मोठा. ब्लेसिंग्स तर आपण द्यायला असे बसलेलो. अरे बापरे, भराभर ब्लेसिंग्स वाटत असतो. चांगला आहे. ऍक्च्युअली वी ब्लेस आवरसेल्फ. दॅट इज वाय आय से व्हेन यू से गुड इव्हनिंग यू शुड बी cheerful. So when you bless others, actually you don't bless, you bless yourself. We know that. सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति. सर्वदेव तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति. काय बात, किती सुंदर आहे. म्हणून नामदेवाने म्हटलंय कोणाच्या विरुद्ध, त्याच्या अपोजिट, त्याच्या ऍब्सेन्स मध्ये बोलू नका. खूप लोक प्रश्न विचारतात, सर त्यांनी कसं, असं त्यांनी काय म्हटलंय, असं उसका तुम्हारा पाप बढ़ेगा उससे. वो जानबूझ के बोला है. क्योंकि सर्वदेव तिरस्कारम केशवम प्रतिगच्छति. सर्वदेव नमस्कारम. पहले सत्य आपण मानतो, पण तिरस्कार करताना लक्षात येत नाही कि जो सिक्के हम उछाल रहे हैं वो सिक्के मेरे पास में लौट के आते हैं. We actually curse or bless ourselves. That is how law of attraction, subconscious theory of work. पण बेस्ट करून आलं की छान वाटतं.
अरे हेच सांगितलं आहे. इसलिए आज का पॉइंट नंबर 5 मिनट लेता हूं. द डिफिकल्ट वर्ल्ड विल कंटिन्यू. अनित्यम असुखम लोकम. कुछ कुछ स्टैंजाज इतने जबरदस्त है गीता के, पकड़ लेने चाहिए. And my sacred struggles will also continue. हा, येस. बिकॉज आपण धर्माच्या नावाखाली, शास्त्राच्या नावाखाली कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए आई एम कॉलिंग देम सेक्रेड स्ट्रगल्स. एंड स्ट्रगल इसलिए कि वी फेल टू लिव एट ईज विथ आवर सेल्फ. क्लास के बाद मस्त कॉफी पियो, इस थॉट के साथ कि जिस दिन नहीं मिलेंगे उस दिन उतना ही आनंद बरकरार रहेगा. खाओ, कांटे से कांटा मारो, देखा जाएगा. पंचदशी में मिल गया मुझे विषयानंदे अद्भुतानंदा. जानबूझ के बोल रहा हूं. अद्भुत रस को जाने मत दो. उत्साह जाऊच द्यायचा नहीं है. जिगर पे हुनर सवार है, लेकिन हमारे जिगर पे होशियारी सवार हो जाती है. और होशियारी से दुनिया में कुछ नहीं मिलता. भगवान के दरबार में सिर्फ चालाकी नहीं चलती. कितनी कृपा है. किसी ने पूछा भगवान की कृपा, अरे हमारी इस दुनियादारी की चालाकी वहां नहीं चलती. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेल्स. आपने देखा है 5 साल की उम्र, जिनकी उम्र बढ़ती नहीं है, ऐसे सनत कुमार. कितना सुंदर मैसेज है भागवत का. और शापाशापी चल रही है, एक दूसरे को शाप दे रहे. लक्ष्मी जी का भी सम्मान रखा, सनत कुमारों का भी सम्मान रखा, जय विजय का भी सम्मान रखा, और अपना भी सम्मान रखा. क्या बात है. दिस इज एग्जैक्टली द लाइफ इज ऑल अबाउट. द होल कॉस्मिक ड्रामा. देन यू कैन से इट इज ए कॉस्मिक ड्रामा. बताओ कहां की किसकी गलती है. जैसे स्त्री का व्यवहार होता है, माफ करना, शरीर के आधार पर बोल रहा हूं, स्त्री है जो है, कॉमन है वो. हाँ, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे. बाय 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 लक्ष्मी जी, माफ करना, तुम्हारा भी सही. सब उनको शाप देता हूं. अब शाप कैसे देंगे. जय विजय तो अपना काम कर रहे थे, तो सनत कुमार को बुद्धि डाल दी. अरे श्रीमद भागवतम, मैंने पहले कहा है, दाएं साइड में श्रीमद भागवतम रखो, बाएं साइड में भागवतम रखो, दाएं साइड में भगवत गीता रखो, और बीच में अपना विवेक रखो. शास्त्र से क्या लेना है. 7वां पॉइंट बहुत सुंदर है. ये बीती यादों का नक्शा हूं मैं. बीती यादों का नक्शा हूं मैं, आज भी कल का ही सिलसिला हूं मैं. क्या बात है. मिलो आप 60-70 साल के हो गए, सिर्फ भूतकाल के सिवा आप कुछ नहीं बात करोगे. हाँ, कलर, फिर से मैं बोल रहा हूं, शास्त्रों का, डूज एंड डू नॉट्स का, 10 कमांडमेंट्स का, संस्कारों का बोझ लेते हुए हम सिर्फ सात्विक बन के क्या बातें करेंगे. हाँ, वाह वाह वाह, क्या कर रहे हैं, कितना ध्यान करते हो, सदगुरु को सुना कि नहीं सुना, आप महागुरु हो गए कि नहीं हो गए, मनाच्या श्लोकाच्या किती परीक्षा दिल्या. ये डिस्कशन और झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इसमें कोई अंतर नहीं है. हाँ, कोई अंतर नहीं है. एज लॉन्ग एज it is deception from friends, God and drink are kept at the same level, as long as they are escapes from what you are. As long as they are escapes from what you are, U capital R capital, God and drink are at the same level. अरे नहीं, खूब जास्त होता है. बदहजमी होने दो आज, और 4 मिनिट. शांतपणे जेव्हा विचार करू, शांती से सोचोगे, तेव्हा हमें समजेगा, yes true it is. काय समजलं आतापर्यंत आपल्याला परमेश्वर म्हणजे. किती वेळा फसवलं आपण. हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सप्लॉइटेड गॉड, वी एम्प्लॉयड गॉड फॉर आवरसेल्व्स. फॉरगेट अबाउट द ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट ऑफ गॉड बाय 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज, शिरडी साई बालाजी दर्शन. दैट इज द ग्रॉसेस्ट. दोस्तों, बेहतर के सर्च में बेहतरीन खो जाता है. In the search of better, we often lose the best. ये बात है. वर्तमान जीने की भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अतीत का रेफरेंस आएगा उसके साथ में. बस वर्तमान में जीना है, दैट्स ऑल. वो बात नहीं हो सकती. बात करते करते अतीत होता है. बेहतरीन के फिराक में, बेहतर के फिराक में बेहतरीन खो जाता है. हाउ ट्रू इट इज.
और इसलिए बीती यादों का नक्शा हूं मैं, आज भी कल का सिलसिला हूं मैं, सांस लेना भी एक इबादत है, ये समझकर जी रहा हूं मैं। ये बात है, इबादत समझी तो ये उत्साह कायम रहेगा, उत्साह रहेगा तो उत्सव होगा, और उत्सव होगा फेस्टिविटी, अरे पूरा आनंद है, अद्भुतम आश्चर्यम अहोभावम एक्सटेसी विज़ावी एक्साइटमेंट। आठवां पॉइंट, do not bring the baggage of your knowledge. Yes, we know this, sir. Are we conscious, friends? We are bringing the virus of logic and the baggage of knowledge. That is why I'm saying the experiencer should be minus from the experienced, and then only you can say you have the experience. Unless from the experienced, experiencer is not minus, there cannot be any experience, because there will be colors, there will be shades, there will be projections. जिंदगी के तलाश में कहां नहीं गया, आखिरी 2 मिनट, जहां मिल सकता था बस वही नहीं गया। यही बात हुई हमारी, टेक इट इजी। जिंदगी के तलाश में कहां नहीं गया, जहां मिल सकता था वही नाही गया। तुझं आहे, तुझं पाशी, तू जागा चुकलाशी वगैरे सगळं माहिती आहे, हो इतकं अपचन झालेलं आहे, इतके मेसेजेस येत आहेत, काय सांगू, टेक इट इजी से तो और आ गए। इसमें क्लियर समझ रहा है कि बिल में गर्म पानी घुस गया है, और छोटे मोटे कीड़े सब बाहर आ रहे हैं, जो अंदर तकलीफ दे रहे थे बराबर आ रहे हैं। वो विश्वरूप दर्शन में बाहर नहीं आ रहे थे, क्योंकि कहानी लग रही थी, और कहानी लगेगी वो आगे भी। इसमें ये देखा वो देखा, ठीक है भाई, देखा होगा, महान है कृष्ण, महान है अर्जुन, दिव्य दृष्टि भी दी है। यहाँ प्रॉब्लम, समस्या हमारी है, वेरी डिफिकल्ट टू लिव इजी, रिलैक्स। और विपरीत परिस्थितियों में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इट गोज विदाउट सेइंग, जब तक हमने हमारे प्रयास का सारे मार्ग खोल के सुविधाएं करके रखी है, थोड़ा गर्म होगा कि ठंडा चलाओ, थोड़ा ठंडा होगा कि गर्म चादर ओढ़ो। आप देखो, ईस्ट वेस्ट में इसलिए करता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र वेस्ट में भी है, वो देख रहे हैं 40-50 साल में वो वृद्धाश्रम की बात करते हैं। अरे कहाँ का आश्रम, कहाँ का वर्णाश्रम, कहाँ एक आनंद में है अगर, तो कौन सा आश्रम है। द लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स फॉर द टुडे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत सोचने के बाद, हर पल में प्यार है। आर वी रियलाइजिंग? वी हैव टू टेक इट इजी। इसलिए बोल रहा हूं, आज अमृत बिंदु उपनिषद है, मन एवं मनुष्याणाम का हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है। इसमें शायरी का पूरा आधार ले रहा हूं, क्योंकि वही सारे पॉइंट्स में जो पॉपकॉर्न जैसे उछल के आ रहे हैं। खो दो तो याद है, और अगर जियो तो जिंदगी है। क्या बात है, बस अगर खो दिया तो याद है, और जिए अगर हम, और ये जीना जो है, टेक इट इजी। आजपासून आता संपताय आपलं 2 मिनिटात, सगळ्या गोष्टी पाहिजे इझी, काहीच कौतुक करायचं नाही ना, कौतुक अपेक्षा काय, नॅगिंग आहे, आय हॅव अ नॅगिंग वाईफ, कॉंग्रॅच्युलेशन्स, आय हॅव अ नॅगिंग हजबंड। हा, कडू बियर कशी गोड लागली, कोरोना बियर, सवयीमुळे कडू बियरचा आस्वाद घेत घेत सुंदर लागायला लागली, मग नॅगिंग वाईफ आणि नॅगिंग हजबंडचा प्रॉब्लेम काय, वाटू दे ना गोड, सवय होईल। हा मंत्र आला पाहिजे, हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, खो दे तो याद है, और जी लिए तो जिंदगी है, और ये जिंदगी जीना है, इस उत्साह के साथ जीना है। दिस वर द 9 पॉइंट्स टुडे। इस उत्सव बनेगा, और कल हम जब इसका आखिर 20 मिनट हम प्रश्नोत्तर भी लेंगे, और प्रश्नोत्तर में केवल प्रश्न पूछा है, इसलिए न उत्तर देने वाला कोई है, न प्रश्न पूछने वाला कोई है। सवाल ये है कि अगर सही समस्या है तो सही समस्या का समाधान समस्या में है। कॉन्सिक्वेंस इज एम्बेडेड इन द कॉज, unmanifest consequence is cause and manifested cause is consequence, nothing else, that is all। इसलिए दुनिया में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम भगवत गीता में सवाल जवाब नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ बहुत लोगों, और ये सवाल फिर से बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देगा और कोई सवाल नहीं पूछेगा। We will only try to understand in the light of understanding with the law of life, that let understanding be the law। आइए दोस्तों, जिंदगी के लम्हे, टेक इट इजी, हम जीने की कोशिश करेंगे। जितना याद रहा हमें वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जितना नहीं आया वो हमारे लिए कचरा था। टेक इट इजी। कल मुझे एक मैसेज आया, सर 4-5 पॉइंट्स रह गए,
मैंने बोला फिर आज का लेक्चर गया काम से अपने. बोले क्यों? बोला लेक्चर का टायटल क्या आहे? टेक इट इझी. आलं ना? कसं सवय झाली आपल्याला. लोक इतकं लिहितात प्रवचनांमध्ये ते, अरे काही कोण सांगणार कशावरून परफेक्ट बोलतोय मी, काही बघतोय तोंडाला येईल ते बोलतोय काही. तुला जर हिट झालं तर तुझ्यासाठी गीता, नाही झालं तर कचरा. संपला हिशोब. आइए भगवान के आशीर्वाद में, नारद जी हनुमान जी के कृपा छत्र छाया में ये टेक इट इजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सही में जीवन में इतना काम करेगा. फिर जो भी आप करोगे, सूत्र पढ़ोगे अच्छा है, नहीं पढ़ोगे अच्छा है, भारत में हो अच्छा है, भारत के बाहर हो अच्छा है, जम रहा है अच्छा है, नहीं जम रहा है अच्छा है. ही सिद्धांत विनोबा भावे नेहमी सांगायचे. हेही सही आणि तेही सही, ये भी सही और वो भी सही. आइए दोस्तों, इस विचारधारा में बने रहे और कल इसका अंतिम, जिसके आधार मैं ईशावास्य पे लूंगा. शुरुआत सत्यकाम जाबाल छांदोग्य से ली, जबकि छांदोग्य के सूत्र न बताते हुए उन सूत्रों को आज का माध्यम जैसा होना है उस माध्यम बताने की कोशिश हुई. आज अमृत बिंदु उपनिषद मनस की बातें हुई. आज देखो जितनी बातें की इस इश्क से लेकर सारी बातें आज हुई है, ये सारे मन के खेल थे, इसलिए मन की बात आज हुई है. और कल ईशावास्य उपनिषद उसके एक ही सूत्र जो बोला है, व्यस्त रहो चुस्त रहो, वो कल वहाँ आएगा. और हमारी ये एक्चुअली 3 दिन का जो है वो हम लोग उसको कहीं ना कहीं तो बोला ना, जैसे शुरुआत है, हर शुरुआत का अंत होता है, लेकिन हम अपने लिए इतना ही देखेंगे कि वी विल बी एबल टू लिव लाइफ कंफर्टेबली without comforts, because we are even born in spite of ourselves. So why can't we remain happy in spite of our problems? Take it easy. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Hari Om.